Hello friends, welcome to my today's video. Since it's Neha's birthday, we planned for a weekend trip to Statue of Unity. We left on Saturday night from our home at Navi Mumbai to the other station. Our route this time is via Atal Setu Bridge. It is the longest sea bridge in India and 12th longest bridge in the world. It was recently inaugurated by none other than our PM, Mr. Narendra Modi ji, on 12th of Jan 2024. This bridge is 28 kilometers long and it connects Navi Mumbai to South Bombay from Ulve to Sewri. Thanks to this bridge, our travel time has reduced from 2 hours to 40 minutes max. You need to pay a toll of Rs 250 for one-way travel. The amount of reinforced steel used in the construction of this bridge is equivalent to 17 times of the amount of steel used in Eiffel Tower. This bridge is connected at Mumbai with Eastern Express Highway which connects CST to Ghatkopar. So we got off the freeway at Wadala and went to the other station. We had booked our tickets in Dadar Ekta Nagar Superfast Express, train number 12927. This was our first time when we travelled in AC first class compartment. We were excited as it was a new experience for both of us. We hoped for a cabin but we were allotted a coupe. This train leaves from Dadar at 11:50 pm and reaches Ekta Nagar station at 8 am the next morning. Our tickets were till Vadodara as we didn't know about Ekta Nagar station being the nearest station to Statue of Unity. So we got up at Vadodara at 5:30 am. We met our very old friend Khyati, Pratik and her daughter. We got fresh, we had breakfast with them and then we got into the cab for Statue of Unity. The cab drive was about 100 kilometers from here and it took about 1.5 for us to reach at Ekta Nagar. This is Ekta Nagar station, the very same station I mentioned earlier while talking about my train. You can pause the video and see the ticket prices of each places near Statue of Unity. You can also see the map of all the tourist places around here. If you reach here early in the morning, then you can get such empty ticket counters or else there will be long queues at the ticket counter. By the way, there is one more way to book your tickets and that is from the official website of Statue of Unity. एंड हाँ एक बात और, यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं. कैश और यूपीआई यहाँ अलाउड नहीं है फॉर परचेजिंग द टिकट्स. टिकट्स काउंटर के बाजू में ही बस डिपो है जहाँ से यू कैन बोर्ड इनटू द बसेस एंड ट्रैवल एनीवेयर फॉर फ्री. Private vehicles are allowed only till a certain point before Statue of Unity. We can park our cars here, buy tickets, and then go ahead by the Unity buses or auto rickshaws. So we booked our tickets online and we are now ready to go. But first, थोड़ा refreshing fruit break हो जाए. We saw these super cool pink autos everywhere at Ekta Nagar. They looked very stunning, modern and stylish. Amazing part of it was that these all autos are electric autos and they are only driven by ladies. यहाँ की लेडी ड्राइवर से बात करते हुए हमें पता चला कि ये ऑटो जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं in order to increase the employment for ladies of Ekta Nagar. If you take an auto from one destination to another, it usually takes 150 rupees. But there's one more way. You can book an auto for entire day for rupees 1000 and ask them to take you wherever you want. It was amazing to see us getting closer to Statue of Unity every minute. It looked more and more beautiful as we reached closer. Enjoy the view here yourself. हम फाइनली हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन के पास वाले बस स्टॉप पहुँचे. यहाँ हमने देखा कि यहाँ सारे बसेस, ऑटो, सफारी कार्स सब सोलर पैनल के नीचे चार्ज होते हैं. ये काफ़ी दिलचस्प बात थी
कि यहाँ की सारी व्हीकल्स इलेक्ट्रिक थी, और सिंस पर्सनल व्हीकल यहाँ पे अलाउड नहीं है, सो पॉल्यूशन का भी कोई स्कोप नहीं है। इट्स ट्रूली अ वंडर सिटी। सो आवर फर्स्ट लोकेशन वॉज वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ 100 नहीं 1000 से भी ज़्यादा टाइप के प्लांट के वेराइटीज़ हैं। यहाँ हमें चलते चलते ये सुंदर एनिमल के शेप्स के प्लांट भी दिखे। फिर मेरी नज़र किसी पे पड़ी। अरे ये कौन है? गिरगिट। गिरगिट को हाय बोल के हम आगे निकले। यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी बहुत सुंदर दिख रहा था, तो मैंने सोचा अब सही टाइम है, मुझे मेरा DSLR भी निकाल लेना चाहिए। यहाँ हमें मेक इन इंडिया का शेर भी मिला। यहाँ से अब आप खुद देखिए कितने विविध प्रकार के फूल और पौधे हमने देखे हैं। यहाँ से जो हमें बटरफ्लाई गार्डन दिख रहा है ना, दिस इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन फॉर द डे। सो हम थोड़ी देर में वहाँ पे भी जाएंगे। ये जो वाइट एनिमल्स आप देख रहे हैं, ये यूनिटी ग्लो गार्डन के हैं, जो शाम को 7 बजे के बाद ओपन होता है, और इन पे खूब सुंदर लाइटें जलती हैं। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में। आवर नेक्स्ट लोकेशन इज मेज गार्डन, जो ग्लोरी ऑफ फ्लावर्स के एकदम बाजू में ही था। यहाँ के भूल भुलैया में खो के तो हमें चक्कर ही आ गया सही में। फिर हम इसके सेंटर वाले फाउंटेन तक पहुंचे। इसके पास में ही एक वॉच टावर है, वहाँ आप खुद चढ़ के पूरे मेज़ का नज़ारा ऊपर से देख सकते हैं। वहीं से हमें दिखा ये एग्जिट वाला बोर्ड, और मैंने अपने माइंड में ये रास्ता पूरा याद कर लिया था, और इसी तरह हम निकल पड़े एग्जिट की ओर। एग्जिट से जस्ट पहले हमें गुमराह करने के लिए वहाँ पे एक रेस्ट जोन का एक बोर्ड लगा हुआ था, बट हम चकमा ना खाते हुए पहुँच गए एग्जिट की तरफ। हमारा नेक्स्ट लोकेशन आरोग्य वन था, बट ड्यू टू सम रीजंस पता नहीं क्यों वो उस दिन बंद था।
सो उसका वीडियो मैंने ऐसे ही बाहर से ले लिया थोड़ा। फिर वहाँ से हम गए कैक्टस गार्डन, जहाँ हमने कई तरह के कैक्टस देखे। यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी भी दिख रहा था और दूसरी तरफ देखो तो सरोवर डैम भी दिख रहा था। यहाँ इंडोर में थोड़े सक्यूलेंट्स भी रखे हुए थे अलग अलग प्रकार के। कैक्टस गार्डन के बगल में बटरफ्लाई गार्डन भी था। यहाँ हमने अलग अलग रंगों की तितलियां देखी। यहाँ के सारे पेड़ पौधे इसी हिसाब से लगाए हुए हैं कि तितलियां इनके आसपास ही उड़ती रहें। बटरफ्लाई गार्डन के बाद हम फिर से मेज गार्डन की तरफ गए। मेज गार्डन के पास कई सारे स्टॉल्स लगे थे जहाँ पे अलग अलग प्रकार के गिफ्ट्स थे जो आप अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए एज ए सोवेनियर लेके जा सकते हो। मेज गार्डन के बगल में पेट जोन था, जहाँ हर तरह के डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ आप मिल सकते हो, खेल सकते हो, उनको हाथ में ले सकते हो और फोटोज भी ले सकते हो। उसी के सामने जंगल सफारी था। यहाँ पे 100 से भी ज्यादा टाइप्स के एनिमल्स देखे हमने। यहाँ सफारी कार में बिठा के पूरा टूर कराते हैं। सबसे पहले था स्नेक पार्क, जो हमने स्किप कर दिया। यहाँ डीएसएलआर यूज करने के लिए उसका अलग से टिकट लेना पड़ता है, बट इट इज टोटली वर्थ इट। यहाँ मेरा डीएसएलआर सबसे ज़्यादा काम आया सिंस सारे जानवर जो थे वो हमसे काफ़ी दूर थे और डीएसएलआर से मैं उनको काफ़ी अच्छे से कैप्चर कर पाया। उसके बाद हमें देखने मिला एक बेबी लेपर्ड, जो यहाँ पे तो बिल्ली ऐसा दिख रहा है बट सही में वो लेपर्ड ही था। फिर हमने कुछ शेरों को देखा। इस गर्मी में वो पेड़ की छांव में आराम फरमा रहे थे। फिर हमने एक ब्लैक पैंथर और जैगुआर को देखा। जैगुआर और लेपर्ड को पहचानने का तरीका उनके स्पॉट से होता है। जैगुआर के जो स्पॉट्स होते हैं उनमें एक आउटलाइन सी होती है और अंदर लाइट कलर सा होता है, और लेपर्ड के जो स्पॉट्स होते हैं वो फुल ब्लैक होते हैं। ये जानकारी भी मुझे यही आके पता चली एक्चुअली। दुख की एक बात ये थी कि यहाँ पे कुछ बच्चे इन्हें टाइगर और लायन बुला रहे थे और इनके माँ बाप इनको करेक्ट भी नहीं कर रहे थे। आई रियली फील उन माँ बाप को अपने बच्चों को यहाँ पे जानवरों के सही नाम बताने चाहिए थे। ये उनकी लर्निंग स्टेज है और उनको सही चीज़ें लर्न करनी चाहिए। आगे हमने एक सोता हुआ वाइट टाइगर देखा, बट यहाँ के कुछ लोगों के शोरगुल से वो उठ गया और हमारे पास आके कैटवॉक करने लगा। फिर हमने एक राइनो भी देखा जो अपने बच्चे के साथ पूल में एंजॉय कर रहा था। बड़े ही क्यूट लग रहे थे दोनों, है ना। इसके बाद हम बर्ड सेंचुरी के अंदर गए। यहाँ पहली बार ऐसा देखा कि बर्ड्स पिंजरे में बंद नहीं है, बल्कि खुले हैं, आज़ाद है और उड़ रहे हैं।
एंट्री पे ही एक तोता बैठा हुआ मिला जो अपना इंट्रो खुद दे रहा था। कुछ ज़्यादा ही होशियार था वो। कहा जाता है कि वो यहाँ का रिसेप्शनिस्ट है, और जब उसका मूड होता है तो वो ये भी कहता है कि आपका हमारे घर में स्वागत है, आपकी यात्रा सफल रहे। यहाँ हमने और भी बहुत अलग अलग टाइप्स की बर्ड देखी, और एक गिलहरी भी जो उनके खाने में मुंह मार रहा था। कुछ ही देर में यहाँ बारिश शुरू हो गई। वैसे मई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और इस साल तो सभी जगह रिकॉर्ड ब्रेकिंग वाली गर्मी हो रही है। बट हम शायद लकी थे जो हमें यहाँ पे बादल, हवा और बारिश मिली। यहाँ हमें एक डक भी मिली जो एक टांग पे मेडिटेट कर रही थी, और जैसे ही मैंने उसको देख के क्वैक बोला, वो मुझे लुक दे रही थी। ये भाई तो सेल्फ ग्रूमिंग में बिजी थे। और ये वाला तो बिल्कुल क्लास मॉनिटर की तरह सब पे नजर रख रहा था। फिर हमने अलग अलग रंग के लव बर्ड्स और पैरट्स भी देखे। ये है हिमालयन गोरल्स, हमारे डियरेस्ट डियर्स। वाइट डियर्स, इंडियन वुल्स। ये भालू जो खाने के बाद अपनी वॉक में निकला था, इसने कुछ नहीं तो मेरे सामने ही करीब 5 चक्कर ले लिए थे यहाँ से आगे पीछे चल चल के। या तो इसने आज खाना ज़्यादा खा लिया था, या किसी ने ज़रूर इस पर कमेंट किया होगा कि तू मोटा लग रहा है। आगे हम मार्शल से भी मिले जो रॉ से बिछड़ने पर दुखी था काफ़ी। मैंने कोशिश करी उसको थोड़ा चेयर अप करने की, पर उसने भी बोल दिया, बेटा ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
ये मंगूस भी अपनी आफ्टर मील वाली वॉक पे निकला था। ऑस्ट्रिच भी धूप में टैन नहीं होना चाह रहे थे, इसलिए वो छांव में बैठे थे। जिराफ भाई तो ढूंढ रहे थे कि कोई तो मिल जाए बात करने के लिए। इनको आपने लायन किंग मूवी में जरूर देखा होगा। ये हमारे ब्लैक एंड व्हाइट जमाने के घोड़े हैं। इनके नाम पे तो सड़कों पे क्रॉसिंग बनी है, जेब्रा क्रॉसिंग। इनके ऊपर एक गाना भी बना है ना, ईमो ईमो ईमो। ओ सॉरी, वो तो इमी इमी है। ये ब्लैक बक जिनसे सल्लू भाई डरता है, आप भी बच के रहिए। जंगल सफारी के बगल में डाइनो ट्रेल था। वहां की एंट्री फ्री है। वहां हम राजा सौर से मिले। इसके बाद हमने एक छोटा सा लंच ब्रेक लिया और निकल पड़े हमारे मेन डेस्टिनेशन के लिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे स्लॉट्स होते हैं, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6। हमारा स्लॉट था 4 से 6 वाला, जो आखिरी स्लॉट होता है पूरे दिन का। हम जब यहाँ पे आए तो लाइन एकदम खाली थी, शायद धूप की वजह से हो सकता है। ये स्टैचू 182 मीटर टॉल है, जो करीबन 600 फीट के बराबर हुआ। और पता है, दिस हाइट इज मोर देन 2 टाइम्स ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इस स्टैचू को बनाने में 3.5 साल लगे थे। एक फन फैक्ट और बताऊं, गुजरात के जो विधानसभा की सीट्स का जो नंबर होता है ना, वो भी 182 है। क्या आपको ये बात मालूम थी? कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ बारिश होने लगी तो और भी अच्छी हवा चलने लगी और मौसम बहुत बढ़िया हो गया था। हम जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों के पास पहुंचे तो हमने देखा कि हम तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं है। करीब 4:15 बजे हम म्यूजियम के लिए गए।
वहाँ हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्तियाँ दिखीं। फिर हमने देखा कि कैसे एल&टी ने इस प्रोजेक्ट को बनाया। नर्मदा रिवर के ऊपर पहले लैंड क्रिएट की, फिर ये स्टैचू का बेस स्ट्रक्चर खड़ा करा। और सिर्फ 2 पिलर्स जिनके अंदर से लिफ्ट्स ऊपर जाती हैं, उन 2 पिलर्स के बेसिस पे ये पूरा स्टैचू खड़ा है। यहाँ पे 2 ऑडिटोरियम्स भी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये है पहला वाला थिएटर। यहाँ जो हमने जंगल सफारी के एनिमल्स देखे थे ना, उनकी फोटो एग्जीबिशन भी लगी है। यहाँ पे एक फ्लाइंग स्क्विरल था जो मेरे साथ चलना चाहता था, और गर्मी के चलते मैंने लेपर्ड को पानी ऑफर किया तो वो बोला मैं सिर्फ बिस्लरी पीता हूँ। यहाँ गैलरी में एल&टी स्टाफ की फोटो भी लगी थी, जिनके साथ नेहा को फोटो लेके बहुत प्राउड फील हो रहा था, एज शी इज एन एल&टी एम्प्लॉय हरसेल्फ। ये है दूसरा थिएटर। इसके बाद हमें जाना था स्टैचू के 45th फ्लोर पे। उसके लिए हमें इस लाइन में लगना होता है। यहाँ की लिफ्ट सुपर हाई स्पीड में 45 फ्लोर्स तक 30 सेकेंड्स में लेके जाती है। जब तक हमारे जाने की बारी आई, लाइन क्लियर हो चुकी थी। यहाँ लिफ्ट में मेकिंग ऑफ यूनिटी का पोस्टर भी लगा हुआ था, जो मैं आपको बाद में अच्छे से दिखा दूंगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं 45th फ्लोर पे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की छाती के पास आता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये स्टैचू बना है। यहाँ से आपको सरोवर डैम भी दिखेगा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सपना था। और खूबसूरत नर्मदा रिवर भी दिखेगी, जो इस समय सूखी हुई है गर्मी की वजह से। यूनिटी की एंट्री दिखेगी, बस स्टैंड दिखेगा। यहाँ हमें टूर गाइड मैडम इस स्टैचू के बारे में कई सारी डिटेल्स बता रही थी। नेहा को एज एन आर्किटेक्ट यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
पीछे की साइड से हमें नर्मदा रिवर का दूसरा साइड दिखेगा जहाँ पे शाम को आरती होती है। यहीं से हमें एकता नगर स्टेशन भी दिखेगा और ये वही वाली रोड है जहाँ से हम आए थे। नीचे आके हमने थोड़ी और गैलरी देखी। यहाँ एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि जगह जगह पे बाथरूम और पानी की सुविधा फ्री दी हुई है, वरना आजकल हर जगह पानी खरीदने में ही करीब 100-200 रुपये खर्च हो जाते हैं अगर हम कई पूरे दिन घूमे तो। और यहाँ के सारे बाथरूम एयरपोर्ट लेवल के साफ सुथरे थे। ये है वो लिफ्ट वाला पोस्टर जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। ये यहाँ पे साइज कंपैरिजन भी दिया हुआ है उन्होंने कि हमारा स्टैचू कितना बड़ा है। यहाँ एक प्लेट स्क्रीन भी थी जहाँ सब लोग शपथ लेते हैं बेहतर भारत बनाने का और फिर उसे यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। हम जब यहाँ से निकल रहे थे तो वही एंट्री पॉइंट जो हमें पूरा खाली मिला था, इस समय यहाँ पे लंबी लाइन बन चुकी थी। तो ये हैं सारे यहाँ के विजिटिंग प्लेसेस। नदी का पानी गर्मी में सूख चुका था इसलिए मैं बोटिंग और बाकी चीज़ें नहीं दिखा पाया, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको घर बैठे बैठे इस वीडियो के थ्रू पूरा स्टैचू ऑफ यूनिटी अच्छे से घुमा पाऊँ। यहाँ से निकल के हम एकता नगर स्टेशन के सामने वाले मैकडोनल्ड्स में गए। इस मैकडोनल्ड्स की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ का पूरा स्टाफ फीमेल था, एक भी जेंट्स नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टाफ। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, यहाँ मोदी जी ने लेडीज़ के लिए खूब अलग अलग तरह की खूब सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हैं। ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे मैकडोनल्ड से निकलते हुए शाम हो चुकी थी। हमने फटाफट यहाँ की नाइट ब्यूटी एंजॉय करी और अच्छा हुआ हमने रुकने का फैसला लिया। यहाँ की नाइट ब्यूटी अलग ही लेवल की थी। जितना सुंदर ये दिन में दिख रहा था उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर ये रात को दिख रहा था। स्टैचू पे लाइट शो तो नेक्स्ट लेवल था। यहाँ से हमें जल्दी ही निकलना पड़ा कि रात की हमारी वापसी की ट्रेन भी थी। हम वापस गए, नेहा का बर्थडे सेलिब्रेट किया और 11 बजे की ट्रेन से निकल के वी वर बैक टू आवर पवेलियन एट 5 AM। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसको अपने दोस्तों से और घर वालों से शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे बैठे स्टैचू ऑफ यूनिटी का मज़ा ले सके। आई होप you all like the video. See you all next time. Until then, see you. Bye bye. Thank you and keep watching my videos. चलो फूको। To you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Neha in advance. Happy birthday to you. काफी आरामदायक है। मीका तुम आई नहीं केक काटने।